کہ ہم آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر پنچایت ایسوسیشن پنچایت کانفرنس جو پائنیئر رہی ہے یہ پنچایت موومنٹ کو آگے چلانے میں, جو آپ نے دیکھا جس کے 3rd ٹائر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. پہلے پنچز, سرپنچز اور بی ڈی سیز تک پہنچا تھا, اور اب 3rd ٹائر کے لیے الیکشنز ہو رہے ہیں. میں اس سب گراس روٹ لیول پہ جو ڈیموکریسی لی جا رہی ہے اس کا کریڈٹ اس ایسوسیشن کو دینا چاہتا ہوں, اور اس کے صدر شفیق صاحب کو دینا چاہتا ہوں. یہ خوشی کا دن ہے کہ آج اس ایسوسیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہم ایک بن کے لوگوں کے پاس جا کے اس مہم کو جو گراس روٹ ڈیموکریسی کی ہے اس کو اور مضبوط کریں گے تاکہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو. یہ ایسوسیشن پورے ریاست میں پھیلی ہوئی ہے. چونکہ شہروں کے ساتھ ان کا کم رابطہ ہے اس لیے سری نگر اور جموں کے شہر میں آپ ان کو بہت زیادہ نہیں پائیں گے, لیکن ان لوگوں نے جو محنت کی ہے اس وقت جب مین سٹریم پالیٹیشنز نے بائیکاٹ کیا پنچایت کا, خاص کر کشمیر بیسڈ مین سٹریم پارٹیز نے, ان لوگوں نے ہمت کی اور لوگوں کے مسائل کو دیکھ کے اپنے آپ کو سامنے لائے. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سال میں اگر کوئی کام کہیں پہ ہوا وہ انہی پنچایت کے ذریعے سے ہوا, باقی تو ہم نے دیکھا کہ کوئی کہیں نام و نشان نہیں ہے کسی اور کام کا. لیکن اس کے لیے میں ان کو بھی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں, اور شفیق صاحب کو خاص کر, کیونکہ یہ ہمیشہ ہی لڑتے رہے اس سب کے لیے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو 3rd ٹائر جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری بڑی بڑی جماعتیں سب کود پڑی ہیں, اب شاید اس کا سہرا بھی میں ان کو ایکولی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کو بھی مجبور کیا کہ اب سیاست پنچایت سے ہی شروع ہوگی, اور اگر کوئی ڈیولپمنٹ ایجنڈا لوگوں کا ہے اور اگر کوئی بھی چیز آگے لوگوں کے لیے کرنی ہے, یہ فورم اتنا امپورٹنٹ ہے پنچایت کا کہ یہ بھی جو لوگ 10 دن پہلے جذباتی نعروں سے چلانا چاہتے تھے انہیں بھی احساس ہو گیا کہ شاید اب وہ لوگوں کو اور زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ ہمارے لیڈران کتنا نووس اس قوم کو سمجھتے ہیں. وہ آج بھی ہمیں چاند ستارے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الیکشن لڑنے سے بھی, جبکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ٹوٹلی ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل میسیجنگ نہیں ہے کہ 3rd ٹائر آف پنچایت بنیں گے. یہ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ پلاننگ کریں گے, ڈسٹرکٹ میں کیا کچھ کرنا ہے سب پلاننگ کریں گے اور یہی ادارے ہوں گے. اس کے ساتھ کوئی پالیٹکس کا بالواسطہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی بھی اٹ ول ناٹ گیٹ انٹو اے پولیٹیکل گیمٹ آف تھنگس, جو ہمارے ساتھی باقی جماعتوں میں کہنا چاہتے ہیں. بیچارے کیا کریں گے, اپنا منہ چھپانے کے لیے شاید کہتے ہیں صاحب ہم تو پاور کے لیے نہیں, ہم تو لوگوں کے لیے سامنے آئے. گیم تو پاور کی ہی ہے, کیونکہ پاور فلوز فرام دی گراس روٹس. جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں گے تو وہیں سے یہ کہنا اب شاید ان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ نہیں صاحب ہم پاور کے لیے نہیں لڑ رہے. لڑ کس کے لیے رہے ہو, کیا کرنے کے لیے لڑ رہے ہو؟ 8 دن پہلے تو یہ تھا کہ الیکشنز کا کوئی معنی نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. کیا زندگیاں بدل گئی یا الیکشن کے معنی بدل گئے؟ بہت مبارکبادی دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے یہ صحیح فیصلہ ایک لیا جذباتی نعروں سے نکل کے, کیونکہ ان جذبات میں ہمارے نوجوان بہہ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے جموں کشمیر ریاست کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ان سیاسی رہنماؤں نے جذبات کو بالائے طاق رکھ کے پریکٹیکل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ملنا ہے وہ انہی لوگوں کو, انہی
इलेक्शंस के ज़रिए मिलेगा, लोगों की डेवलपमेंट के बिना कोई भी रोल किसी पॉलिटिशियन का नहीं है। कोई मुझे कहेगा कि पंचायत में इलेक्शन से मैं कोई वापस ला रहा हूँ, अगर 2018 में बाइकआउट था, यही पंचायतें थी, अगर तब कहा गया कि बाइकआउट करेंगे 370 और 35A के लिए, आज क्या, उसके बाद जब पार्लियामेंट का आया उस दिन नया डोंग था, उस दिन उसमें तो कोई बाइकआउट नहीं किया। उस दिन कहा इलेक्शन लड़ेंगे 370 और 35A लाने के लिए। फिर बदकिस्मती हमारे लिए 2019 5 अगस्त को सब कुछ लिया गया, लेकिन वहीं बिराजमान वहीं हैं, वो भूल ही गए कि इलेक्शन किस लिए लड़ा था। उसी वादे पे लोगों से वोट ले गए थे, हम लोगों ने भी दिए, हमने भी, हमारे पास जो पूंजी थी हमने भी उनको हाथ में थमा दी कि साहब ले लो, आप बचाने निकले हो। बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा, आज खुशी का मौका है तो मैं ये आपको शेयर करना चाहता था कि आज हमारे साथ पंचायत की जो ये इन्होंने बैकबोन बनाई हुई है डेमोक्रेसी की ग्रास रूट से, इसके लिए मैं मुबारकबादी शफीक साहब को भी दे रहा हूँ, इनकी जमात को भी दे रहा हूँ। और आज से ये सब अपनी पार्टी में हैं और अपनी पार्टी इंशाअल्लाह लोगों को वादा कर दिए कि जैसे हमारी सियासत सच पे मबनी है। आपने देखा 1 साल पहले जब हमने कहा कि साहब सच ये है कि हमें ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड वापस लानी है, आज भी ये एजेंडे में है हमारे। कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई, हम वादाबंद है और इंशाअल्लाह सब पूरा करेंगे। उसी सब चीज़ों को हासिल करने के लिए शफीक साहब और इनकी एसोसिएशन हमारे साथ मिली है। मैं अपनी और अपनी जमात और अपने सब लोगों की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और इंशाअल्लाह कौम को एक वादा करता हूँ कि हमारी एसोसिएशन पर्सनल मफादात के लिए नहीं है, लेकिन कैसे बेहतर तरीके में उनकी खिदमत की जाएँ उस लिए है। आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही आज हमारे साथ हमारे साथी बेग साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी एक फजल बेग साहब और ये भी एक खुशी की बात है कि इस मौके पे जब हम पंचायत के रूह के साथ आगे इस पंचायत इलेक्शन जो हैं अगले फेज़ इसमें जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी ज़रूर देगा। हमें ये मालूम है कि जुमा 8 दिन वाली जमात, ऐसा नहीं है कि हमें कोई गलत फहमी है। 8 मार्च को जमात बनी, बदकिस्मती से 23 मार्च से लॉकडाउन हुए, 4 महीने तो कहीं निकल ही नहीं सके। पिछले 2-3 महीनों में कुछ मोमेंट्स की, थोड़े से दफ्तर ज़िलों में दफ्तर हुए, लेकिन चूँकि मेरे साथ ही सभी सियासतदान हैं, तो इन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, लोगों के पास जाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। आप सब लोगों के लिए वक्त पे आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। और अगर कहा जाए कि हमने क्या किया, मुझे लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है ये क्रेडिट लेने में कि 22 साल जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लगे रियलाइज़ करने में कि सही रास्ता क्या है। शायद 1 महीना नहीं लगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वालों को रियलाइज़ करने में कि प्रैक्टिकल यही है, और वो इस रास्ते पे आए जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत का मफाद है। और मैं उनको मुबारकबादी इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, क्योंकि इमोशन से हम अपने बच्चों को उनका फ्यूचर ख़राब करते हैं और कुछ हमें हासिल नहीं होता। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर साहब, या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरान बेग साहब से लेकर यहाँ तक इस अंद्राबी साहब बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों को दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस वजह से जिस घटा टोप अंधेरे के अंदर
इन लोगों ने कदम उठाया वो कोई आसान काम नहीं था। मेरे नज़दीक लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है, लीडर वो नहीं होता कि जो मॉब के पीछे पीछे चले और जिधर मॉब जाए उधर लीडर जाए। मेरा मानना यह है कि लीडर वो होता है जिधर लीडर जाए मॉब उधर मुड़े। और एक ऐसे हालात के अंदर अल्ताफ बुखारी साहब या इनके साथियों ने जो कदम उठाया, कंप्लीट तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक अंधेरा छा गया था, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि अब हम किधर जाएंगे। और ऐसे ही हालात के अंदर लीडरशिप की ज़रूरत आती है। जब क्राइसिस हो उस वक्त अगर लीडर छुप जाए, कहीं पर जेल का बहाना बनाकर, कहीं पर घर की नज़रबंदी का बहाना बनाकर, कहीं और बहाना बनाकर, तो मुझे लगता है कि वो कौम उस वक्त क्राइसिस की शिकार हो जाती है। मैं इसके बाद अपने मुद्दे पर आऊँगा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन, इसकी बुनियाद साल 2012 में डाली गई थी, सून आफ्टर 2011 के इलेक्शन के बाद। उस वक्त हमने एक जदोजहद शुरू की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ग्रास रूट लेवल पर वो डेमोक्रेसी आनी चाहिए जो हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के अंदर है या बाकी हिस्सों के अंदर है। उसके अंदर बहुत सारी मिसालें मैंने दी थी कि यहाँ से हिमाचल के अंदर देख लो, पंजाब के अंदर देख लो, जो हमारी हमसाया स्टेटें हैं, कठुआ की तरफ से एक पंचायत उठाओ, दूसरी पंजाब या हिमाचल की तरफ से उठाओ, उसकी एम्पावरमेंट क्या है और हमारी एम्पावरमेंट क्या है। बदकिस्मती से 60 साल से 70 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर जो बरसर एकदार जमातें रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना डरा के रखा कि ये लखनपुर से उसकी तरफ नहीं देखने चाहिए जहां से ये लोग इक़्तिदार लाते थे, कहीं इनको डेमोक्रेसी का पता ना चल जाए, कहीं इनको ग्रास रूट लेवल की गवर्नेंस का पता ना चल जाए, कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशंस का पता ना चल जाए जो हिंदुस्तान के अंदर इंजॉय किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जब आएंगे तो इनको पावर शेयर करनी पड़ेगी। हमें डरा के रखा गया। अलबत्ता हमने ये सफ़र शुरू किया। इस सफ़र के दौरान में 2012 से लेकर 2020 तक हमारे 20 सरपंच जो हैं वो शहीद हो गए, इस मूवमेंट के अंदर मारे गए, वो सियासत के शिकार हो गए, वो पॉलिटिकल किलिंग्स थी, मारे गए, लेकिन हमने अपना सफ़र जारी रखा। मैं आज भी इस वक्त ये इतनी रियासत जम्मू कश्मीर की सरकर्दा लीडरशिप के सामने ये कहता हूँ और ये दावा करता हूँ कि 2018 के अंदर जब पंचायत चुनाव करवाने की बात आई तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सब ने बाइकआउट कर दिया था कि हमारे सिवा यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। हम खड़े हो गए, आम लोग जो गाँव के थे, इस ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपके सामने उस वक्त लद्दाख हमारा हिस्सा हुआ करता था, बाई एंड लार्ज 74% पोलिंग हो गई और रियासत के अंदर चुनाव हो गए। 2019 के अंदर जिस वक्त यहाँ पर 5 अगस्त का वाक़या हुआ, अगरचे कि उसका तमाम लोगों को दुख है या सदमा है, उसके बाद जब तमाम जो लोग थे, कुछ नज़रबंद थे, कुछ इस किस्म के थे, कुछ सेल्फ आइसोलेशन जिसको कहते हैं, सेल्फ नज़रबंदी में चले गए हुए थे अपने फेस को बचाने के लिए, उस वक्त भी यही ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने स्टैंड लिया और सेकंड टायर के चुनाव जो है वो वजूद में आए। उसके बाद मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ हमारा आने का मकसद क्या बना, जबकि अभी 3 नवंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ आप में से बहुत सारे लोग उसके गवाह होंगे। हमने कहा कि 280 नशिस्तों पर जो यहाँ पर डीडीसी का चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। फिर क्या वजह बनी कि हम इधर क्यों आए? मालूम यह हुआ कि उस दिन भी मुझे बहुत सारे आपके मीडिया के साथियों ने पूछा था, साहब आप गुपकार के साथ नहीं हैं। मैंने कहा था गुपकार के साथ हम तो हैं, लेकिन गुपकार हमारे साथ नहीं है। गुपकार जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नहीं है। मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड, आपके बहुत सारे लोगों के पास वो ऑन रिकॉर्ड होगा, मैंने कहा था आप डेट इलेक्शन की अनाउंस होने दो, 1 हफ्ता अभी लगेगा, आप देखना ये तमाम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। हुआ यूं, हमारे पंचायती निज़ाम को शुरू से इन दोनों जमातों ने यहाँ पर नहीं चाहा कि लोकल गवर्नेंस वजूद में आए। जब अब ये 3rd टायर के चुनाव होने जा रहे थे, मैं इस चीज़ का बहुत सारी चीज़ों का ऐन शाहिद हूँ। ये लोग यहाँ से खुद पहुँचे, अल्ताफ साहब, मीर साहब दिल्ली में, इन्होंने कहा हमारा रोल खत्म हो गया जनाब, हमें मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कैसे मौका दिया? लगा हमारे सिवा आपने 2018 के चुनाव भी करवा दिए, हमारे सिवा आपने 2019 के चुनाव भी करवा दिए, आज आप कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करो, हम किस पर करें? उन्होंने कहा क्या किया जाए? इन्होंने कहा जी कि इसके अंदर अमेंडमेंट करके हमें मौका दिया जाए इसके अंदर आने का। इन्होंने अमेंडमेंट करवाई, तब मेरा अंदर वो जाग गया कि अब इनको सबक सिखाने के लिए एक नया विकल्प जो है, एक सियासी कंस्पायरेसी को
Öyle yapıyor, öyle geç. Peki nasıl bakar? चलो चले बैठे क्वेश्चन